tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. हेलो एवरीवन। तो आज मैं मल्टीवर्स के बारे में बात करूँगा। तो इस आसान लैंग्वेज में समझते हैं कि ये बहुत सारा यूनिवर्स को मिला के बनता है मल्टीवर्स। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि एक ग्रैंड यूनिवर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 5 थ्योरी बताई गई है यहाँ पर, जैसे गॉकर यूनिवर्स, बबल यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, इन्फिनिट यूनिवर्स। अब एक एक करके हम जाएंगे, ये सब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर। साइंटिस्ट कैन बी श्योर व्हाट द शेप ऑफ space time but mostly likely is flat as opposing to spherical or even constant shape and stretches out infinite. But if the space-time goes on forever, then it must start repeating at some point, because there are finite numbers of ways or particles can be arranged in space and time. So if you look far enough, you would encounter with another version of you. Okay? In fact, infinite versions of you, some of these twins will be doing exactly you are doing right now, while others will have won a different fighter this morning, and still others will have made vastly different career and life choices, because the desirable observable universe extends only as far as light has a chance to get. The 13.7 billion years since the Big Bang, the space-time beyond the distance can be considered to be its own. In this way, a multitude of universes exist next to each other in a giant patchwork of universes. अब बबल यूनिवर्स की थ्योरी। In addition to the multiple universes created by infinite existing space-time, other universes could form through eternal situation. Then infinite explanation that the universe expanded rapidly after Big Bang and effect inflating like a balloon. और यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि कोई भी स्पेस में तो गैस फैस तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर ऐसा होता तो हमारे प्लैनेट भी तो गैस यहाँ पर मुझे हंसी आ रही है सुनने में कि इसे बबल यूनिवर्स को बैलून से कंपेयर किया गया है। मतलब इतनी स्टूपिडिटी है, क्योंकि कोई भी बैलून या फिर वो बबल जो हमारे केमिकल से डाल के या फिर ये करके, तो वो एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से फट जाता है। आपने देखा होगा अगर मेले में अगर बबल को फुलाया है। वैसे भी हमारे सोलर सिस्टम में ही ऐसे तो प्लैनेट ऐसे है जो गैसियस प्लैनेट है, पर वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही बड़ा हो गया है, एक्सपैंड हो गया है। बब खैर जानने को इस बात को। Thus, the our universe where inflation has ended, allowing stars and galaxies to form is but a small bubble in vast sea of space, some of which still informing contains many other bubbles like ours, and in some of these bubble universe, the law of physics and fundamental strength might be different than in ours. In some universes, strange places indeed. जिन लोगों ने मुझे पिछली वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने कोशिश किया है पैरेलल यूनिवर्स को समझाने की, कि पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ऑल्टरनेट टाइमलाइन से बनता है। अगर कोई टाइम से छेड़छाड़ नहीं किया तो मेजर इवेंट्स का कोई चेंज नहीं होगा।
मतलब टाइमलाइन में कोई मेजर चेंजेस नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर की मेजर टाइमलाइन में आता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है, फिर वियतनाम का वो वार आता है। सिर्फ माइनर चेंजेस ही हुए हैं, चाहे कंपनी का सिंबल बदलना या फिर टीवी शो का लोगो बदलना, ये सब छोट एरा गया क्या गॉकर यूनिवर्स पे इन theoretical of quantum mechanics which regions over the tiny world of subatomic particles suggest another way multiple universe might arise. Quantum mechanics describe the world in terms of probability rather than definite outcomes, and mathematics of the theory might suggest that all possible outcomes of the do occur in their own separate universe. For example, if you reach crossroads where you can go right or left, the present universe gives rise to two universe, one which you go right, one in which you go left, and in each universe there is a copy of you witnessing one or the other. Currently, that your reality is one of the reality Green wrote in the young reality. यह mathematical universe पे scientists have debated where mathematics is simply a useful tool for describing the universe or whether math itself is the fundamental reality and our observation of the universe are just imperfect objects to mathematics nature. If the latter case, then perhaps the particle mechanical structure that makes up our universe isn't the only option, and in fact all possible mathematical structures exist as their own separate universes. Mathematical structure is something that you can describe in a way that completely dependent of human basis. तो आप लोग को समझ गए होंगे कि कुछ थ्योरी सही है और कुछ थ्योरी गलत साबित होती है। अब मैं ड्राइंग से समझाऊंगा दोस्तों, मैं अभी समझाऊंगा कि इस मल्टीवर्स को इस ड्राइंग से, ठीक है, समझ लीजिए ये हमारा गैलेक्सी है। वैसे तो बहुत सारे गैलेक्सी होंगे, है ना, बहुत सारे गैलेक्सी होंगे। अभी बहुत सारे गैलेक्सी को अगर ऐसे जोड़ के तो एक ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी को मिलाकर एक सिंगल यूनिवर्स बनता है। बहुत सारा मिलकर एक बनता है। ऐसे ही बहुत सारा मतलब सारे गैलेक्सीज है हमारे एक ही ये के अंदर, समझ रहे आप। अब इसको ये से ग्राफिकली समझना है तो हमें ये ऐसा करना पड़ेगा मुझे। क्योंकि यही एक परफेक्ट है कि बहुत सारा गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनता है। और ऐसे ही बहुत सारा अभी ऐसे एग्जाम्पशन है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। अगर यूनिवर्स एक्सपेंड करें होता तो ना तो दूसरे यूनिवर्स से ना टकरा जाता, दूसरे नेबर यूनिवर्स में ना टकरा जाता और पूरा बम, समझ रहे हैं आप। एक्सपेंडिंग का थ्योरी जो बोला गया है ना, ये फेक हो जाता है। अगर मल्टीवर्स की थ्योरी को मांगे तो, अगर मल्टीवर्स की थ्योरी को साथ लेकर चले तो ये एक्सपेंड यूनिवर्स से जो एक्सपेंड वाला थ्योरी जो ये फॉल्स हो जाता है, ये झूठ का साबित हो जाता है। अगर ऐसा होता तो ना हमारे यूनिवर्स धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो दूसरे यूनिवर्स के हमारा अलग वर्सन को ना खतरा हो जाएगा, दूसरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से खतरा हो जाएगा। यहाँ पर खतरा हो जाएगा, या फिर इस यूनिवर्स पे खतरा हो जाएगा, या फिर इस पे इससे
अगर स्पैन के मर के चलेगा तो बेलून के अगर बढ़ भी रहा है ना तो दूसरे यूनिवर्स में खतरा आ जाएगा। और ये बबल भी तो नहीं है ना, ऐसा नहीं कोई बैक्टीरिया को कहना नहीं है जो है पहले कहा था कि अगर यूनिवर्स बबल जैसा होता तो इन लोगों का थ्योरी है कि ऐसा 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 धीरे धीरे करके ना ऐसा कर रहा है, मतलब एक बैक्टीरिया जैसा होता है ना, जैसे छोटा छोटा बैक्टीरिया वैसा कर रहा है। अगर ऐसा होता ना तो अगर ये इस पर बेलून लड़के भी चले या फिर ये भी लेके चलेगा तो भी ऐसा नहीं होता है, ऐसा गलत है। क्योंकि बबल भी हमने देखा ना, बबल कैसा काम करता है। अगर ऐसा एक प्लास्टिक का वो रखा है, फिर फू करता है, हम फू करते हैं, एक बबल निकलता है, उसके बाद एटमोसफियर प्रेशर के पीछे कुछ ही समय तक रहता है, कुछ ही समय का रहता है, फिर पॉप हो जाता है। तो आप सोचो कि अगर ऐसा होता तो ना हमारा जो यूनिवर्स है ना हमें हमारा जो अर्थ होता है, हमारा प्लैनेट जो भी होता है ना, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ ही सेकंड मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा ये यूनिवर्स और उस नेबर यूनिवर्स भी। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक ही है, सिंपल सा लॉजिक है ये। अगर ऐसा ही होता ना, बबल यूनिवर्स ऐसे होता है तो बबल को जान के तो कैसे पॉप करता है ना, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर आता है ना, पॉप हो जाता है यूनिवर्स। तो एक बहुत साल पहले ख़त्म हो जाता हमारा यूनिवर्स। हमारा अर्थ भी नहीं बचता, हमारा वो सूरज भी नहीं बचता। अगर एजम्पशन करे तो कितने सेकंड लगता है वो बबल, इतने भी कम सेकंड ही लगता है। अगर ऐसे चले तो 50 सेंचुरी में तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। अगर मेरी एजम से 15 या फिर 13 लेके भी चले, 13 सेंचुरी भी लेके चले, 13 सेंचुरी में ख़त्म हो जाएगा हमारा अर्थ। इसी वीडियो में कहा था कि बहुत सारे यूनिवर्स को ग्रेग बंग मिलकर एक ग्रैंड यूनिवर्स बनता है। तो वो कैसे मैं समझा तो अभी तो बहुत सारा यूनिवर्स हो गया, वो गोल वाला इसका अंदर गैलेक्सी से बहुत सारा है ना। तो ऐसा होता है समझे, ये यूनिवर्सेस है, बहुत सारा यूनिवर्सेस है। एजम कर दो आप। कर लो आप। और ये गैलेक्सीज है, ऐसा समझ लीजिए, ओके, ऐसा समझ लीजिए। और ऐसा ही बहुत सारा इसको मिलाकर ना वन ग्रैंड यूनिवर्स बनता है। बहुत सारे यूनिवर्स को मिलाकर एक ग्रैंड यूनिवर्स की बहुत पुराना है। ऐसे ही बहुत सारा वन लेकर चले तो ऐसे ही बहुत सारा ग्रैंड यूनिवर्स रहता है, समझे। इसे समझ लीजिए MC मार्वल यूनिवर्स समझ लीजिए, तो इसे समझ लीजिए DCEU समझ लीजिए, DC यूनिवर्स समझ लीजिए इसे।
समझ में आ रहा है आपको? मतलब गैल मतलब एक यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी, इसके ऊपर मिलाकर एक ग्रैंड यूनिवर्स, मतलब इसे मार्वल यूनिवर्स समझ लीजिए, वैसे डीसी यूनिवर्स समझ लीजिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको आप लोग समझ जाए कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इससे। ऐसे ही बहुत सारा एक और ग्रैंड यूनिवर्स 2 समझ लिए। ऐसे ही ऐसा भी बहुत सारा है यहाँ पर। एक DCU, फिर इसे सोच लिए मिशन इम्पॉसिबल यूनिवर्स, इसे समझ लिए ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स, इसे समझ लिए गॉडजिला मॉन्स्टर यूनिवर्स, फिर ये पावर रेंजर्स यूनिवर्स। और इसमें बहुत सारा अलग अलग यूनिवर्स है, और अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग गैलेक्सीज है, पर वो अलग अलग चीज़ है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, सिमिलर लगता है। समझ रहे आप? आई होप आपको समझ गया होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि यह कैसा काम करता है। इससे भी ऊपर चीज़ है कि इससे ऊपर क्या है, मतलब ग्रैंड यूनिवर्स के ऊपर क्या है। तो बहुत सारे ग्रैंड यूनिवर्स को मिलाकर एक ग्रैंड यूनिवर्स बनता है, जो बहुत मच ओल्डर है। मतलब मैं अगर बोलूँ कि मैं एक गैलेक्सी हूँ, अगर मेरे पापा एक यूनिवर्स है, और मेरा भाई बहन, मेरा सिस्टर, मेरा ब्रदर सब गैलेक्सी से, और मेरा समझ रहा है मेरे पापा, और मैं अब बहुत सारा यूनिवर्स को समझ रहे मेरे दादाजी, या फिर मेरा ग्रैंड यूनिवर्स, और मेरा ये को समझ रहे ग्रैंड यूनिवर्स। मतलब बहुत सारा ग्रैंड यूनिवर्स को संभाल रहा है एक ग्रैंड यूनिवर्सेस, और यहाँ के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सेस है, और उस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज है, और ऐसा ही कंटिन्यूएशन समझ लीजिए कि मैं हूँ, और ये मेरा भाई बहन है, और पापा का भी भाई बहन है, और ये बहुत सारे भाई बहन को यूनिवर्स समझ लीजिए, और जिसको कंट्रोल कर रहे हैं एक ग्रैंड यूनिवर्स, मतलब दादाजी और दादी जी समझ लीजिए कोई एक। और ग्रैंड यूनिवर्स का भी बहुत सारा भाई बहन समझ लीजिए, और ये उसको ये कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये मेरे लिए ग्रैंड फादर है मेरे लिए, या फिर ग्रैंड मदर है मेरे लिए। तो उसका भी कोई सिस्टर ब्रदर्स अगर है, तो इस सिस्टर ब्रदर्स को हम ग्रैंड यूनिवर्स समझ ले। तो ऐसा ही तो इसके साथ भी है, ग्रैंड यूनिवर्स का भी तो भाई बहन होगा। मेरे लिए ग्रेट ग्रैंड फादर है, फिर मदर है, और उसका भी आप समझ में आपको क्लियरली पता चला।